ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟି ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଟିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରୁ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛି, ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3 ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 1 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 2 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ନେବା ଟିକେ। ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜିଓର ଗୋଟେ ଟର୍ମ ବା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି ରହିଛି ଏହାର କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆବିଲିଟିକୁ ବୁଝାଇ ନଥାଏ, କୌଣସି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ନଥାଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଏବିଲିଟି ଟୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଏବିଲିଟି ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଏବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ, ଏବିଲିଟି ଟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ, ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିଜନିଂ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ନଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଥାଉ ମେମୋରି, ଜଣଙ୍କର ସାର୍ପ ମେମୋରି ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ତ ସେମିତି କଦାପି ବି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି, ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କାମ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗାଲ୍ଟନ୍। ମନେ ରଖିବେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗାଲ୍ଟନ୍। ଯଦିଓ ଆଙ୍କ ଉପରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନଥାଏ, ଖାଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗାଲ୍ଟନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ଆସିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 1905 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1904 ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ହୁମ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନେମ୍ ଦେଇଥିବ ଯିଏକି ଥିଓଡୋର ସାଇମନ୍। କ'ଣ ନା ଥିଓଡୋର ସାଇମନ୍। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ ମିଶିକରି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମିଶିକରି ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛି ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍ଙ୍କ ନାମ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଓଡୋର ସାଇମନ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଥାଉ MA, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭିନ୍ ବାଇ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍। ତ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ କହିଲେ ମାନସିକ ଆୟୁ। ତ ମାନସିକ ଆୟୁ କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ତ ସେ ପିଲାଟିର ବ୍ରେନ୍ ଆମେ କହିଥାଉ ଗୋଟେ 15-20 ବର୍ଷ ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ତାର ମାନସିକ ଆୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 15 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ବୟସ କେତେ? 10। ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ପିଲାର ବୟସ ଧର 10 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷ ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ଭଳି। ତେଣୁ ତାର ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଜ୍ ସିନା 10 କିନ୍ତୁ ତାର ମାନସିକ ଆୟୁ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ବ୍ରେନ୍ କେତେ କାମ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍, ମାନସିକ ଆୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟି ରହିଛି ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1912ରେ ଆପଣଙ୍କର IQ। ତ IQ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋସେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋସେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟର୍ନ। ମନେ ରଖିବେ IQ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର IQ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋସେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟର୍ନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ IQ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେ IQ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟର୍ନ ଏଇ IQ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ IQ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମୁଲା ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର 1916ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ କିଏ ନା ଲିୟୁସ୍ ଟର୍ମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିୟୁସ୍ ଟର୍ମାନ। ତ ଇଏ ଆସିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମୁଲା ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଟିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ।
जे IQ इक्वाल्स टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 व्वेयर MA कौन मेंटल एज जहाँ आम मानसिक आयु कहले एवं CA कौन क्रोनोलॉजिकल एज बा एक्चुअल एज जोटा कि आपंकर एक्चुअल एज बा क्रोनोलॉजिकल एज जहाँ आम प्रकृत बयस कही था जोटा कि आपंकर जन्म पर एवं पर्यंत आपको जी बयस होता हूँ आपंकर प्रकृत बयस किंतु मानसिक बयस कौन मुझे आपंकर प्रकृत एज हूँ धरतु 20 वर्ष किंतु आपंकर ब्रेन काम करुँच गोटे 25 वर्षर पिला भली तेणु ये आपंकर मेंटाल एज हो 25 तो आपको एग्जाम केमती आसो देथिबो मेंटाल एज देथिबो IQ देथिबो आपको क्रोनोलॉजिकल एज बाहर करने देथिबो किंबा आपको CA देथिबो MA देथिबो IQ बाहर करने देथिबो तेमती अल्टरनेटिंग करके सेटा देथिबो किंबा डायरेक्ट फॉर्मूला भी पचारता है डायरेक्ट फॉर्मूला भी आसी थाए तो ये जो प्रॉपर फॉर्मूला आपंकर किए देते टर्मान देते ये कथा आप मन रखिए एवं देखो आपंकर नेक्स्ट देखो ये कर्वटा जेहेतु मुझे हाथ में ड्र कर देखिपे केते सुंदर माने तो ये देखो आपंकर यो कर्वटा को आम कही था कौन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बा जहाँ को आम बेल शेप्ड कर्व बाको आम कही था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर तो यहाँ कहीं आपको पढ़ाऊँ ना एथुर आपंकर ओटेट्रे गोटे इयर आपंकर क्वेश्चन आसी 2016 2016 ये कर्व उपर आपंकर क्वेश्चन आसी अच्छी ठीक अच्छे तो क्वेश्चन मुझे लास्ट को रखी ना जो मैंने ये क्वेश्चन टा आड करनी भूली जाइए तो जो मैंने आप 2016 प्रीवियस ईयर देखु था कर्व आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन आसी तो ये कर्वटे आप देखो ये कर्वरे यहाँ आपंकर हूँ एक्स एक्सिस एवं यहाँ हूँ आपंकर वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस रे निया जाइए IQ स्कोर एवं आपंकर वाई एक्सिस रे निया जाइए नंबर ऑफ स्टूडेंट बा नंबर ऑफ पीपल आप जहाँ उपर ये IQ बाहर करुँच IQ केमी बाहर ना आपंकर फॉर्मूला देखिले आम IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 तो ये देखो आपंकर ये जो कर्व रे आपंकर तले रखागला IQ स्कोर तो आम ये जो मझीटा को आम ने 100 बोली धरिले एवं प्रत्येक को आम 15 आगू को बढ़ीचे देखो 115 130 145 एवं पछू पछु आम 15 लेखा कमेकी नहींचे 85 70 55 नहींचे एवं एथिरे आपनकर कोन नंबर ऑफ पीपल एथिरे आपनकर सूचा जाइछि से नंबर ऑफ पीपल हो तो स्टूडेंट हो जहाँ ऊपर आप कार्य करूछन्ते ठीक अछि तो ये आपंकर देखूँ आपंकर ये जो 100 लिखा जाए तो ये देखूँ आपंकर ये जो कर्वटा आपको सूचौची 85 रु 115 भितर तो ये कर्व आप देखिपे तो आर भितर आपंकर जोड़ा रखा जाइए सेठी आपंकर बेसी प्रायतः नॉर्मल बा एवरेज लोक था आम जदि गोटे क्लासरूम सिचुएशन नवा तो क्लासरूम रे बेसी आपंकर था एवरेज चाइल्ड बा नॉर्मल चाइल्ड एवं आगो को देखो एपटे जो रखा जाइए IQ स्कोर 145 रखा जाइए धीरे धीरे यहाँ कमी कमी आई तो 145 अर्थात जो मैंने अधिक टैलेंटेड चिल्ड्रेन से संख्या क्लासरूम रे बहुत कम थाए एवं एपटे देखुवे कमी कमी आसी तो यहाँ हूँ मंथरगामी जो मैंने कि पूरा डल तो से संख्या क्लासरूम रे कम थाए तो प्रायतः ये आपंकर अधिक स्टूडेंट किए था नॉर्मल बा एवरेज तो आप 2016 रे कौन क्वेश्चन आसाला 2016 आसाला जे ये कर्वटी आपंकर ये जीरो मेंशन करता है याडू प्लस याडू माइनस ये खाली शो करता है कर्वटे क्यों पिला सूचौची तो ये आपंकर ऑप्शन थिला तो ऑप्शन भितर आप मारे विभिन्न बुद्धि संपन्न पिला को सूचौची अर्थात नॉर्मल बा एवरेज एवं आपनकर एभव एवरेज है बिलो एवरेज तो टोटाल उपर विभिन्न पिला मानक पई सूचाउची एवं देखो ये जो 100 तो ये 100 पाखे आपंकर से लिखा जाए है सिग्मा 0 बा म्यू द्वारा सूचित करा जाए है एवं आगो को म्यू 1 सॉरी आगो को सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एवं पछू को माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 एभली सूचित करा जाए है तो ये कथा आप मन रखिए ये कर्व तो ये कर्वटे आपंकर कौन सूचाई थाए ये कर्वटे आपंकर विविध बुद्धि संपन्न पिलामानकर कर्व सूचाई थाए एवं नेक्स्ट देखो आपंकर देखा जे IQ वैल्यूज तो ये जो IQ टेबल रही है आप मन रखिदेवे किंतु आपंकर यहाँ सीटेट रे प्रायतः आसी थाए आपंकर ओटेट रे अति डिटेल्स आसी न थाए स्टिल आपंकर देथिबो जे 90 रु 110 एमती दी तीन क्वेश्चन अच्छी जोटा रिपीट हुए से आप मन रखिदेवे ये आप देखुए IQ वैल्यूज एवं कैटेगोरीज तो 140 और एभव हेले जीनियस कहवा 130 रु 135 139 जार IQ आसो भेरी सुपेरियर भितर जीव 120 रु 129 हेले सुपेरियर 110 रु 119 हेले एभव एवरेज 90 रु
ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ବା ଆଭରେଜ୍ ମନେ ରଖିବେ। 90ରୁ 100 ନ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 90ରୁ 110 ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ବା ଆଭରେଜ୍ ପିଲାଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ। ଜିନିୟସ୍ 140ରୁ ଅଧିକ ଜିନିୟସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଡଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଡଲ୍ ତ ବା ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଟେବୁଲ୍ଟି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଓରିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଥିଓରି ଆସିନଥାଏ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ସର୍ଟଲି ଆମେ ୟାକୁ ବୁଝି ନେବା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଟିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିନଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଥିଓରିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭିତରେ ଆସିଲା ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି, ଯେ ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଗିଭିନ୍ ବାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। ତ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବା ମୋନୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସେ ବା ଗୋଟାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି ବା ସିଙ୍ଗଲ ଆବିଲିଟି। ତ ସିଙ୍ଗଲ ଆବିଲିଟି, ଏଇ ଆବିଲିଟି ବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଆବିଲିଟି ଯାହାଠାରେ ଅଛି ସେଇ ପିଲା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକ କି ମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇକି କହିଥିଲେ ଯେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି ବା ସିଙ୍ଗଲ ଆବିଲିଟି। ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଲଜିକକୁ ନେଇକି କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଭିତରେ ମାନେ ଲଜିକ୍ ଆବିଲିଟି ଥିବ, ତ ସେଇ ପିଲା ହିଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗଲ ଆବିଲିଟି କଥା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗିଭିନ୍ ବାଏ ଚାର୍ଲସ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ତ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଓଟିଟିରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଲସ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 2 ପିଲାଙ୍କର ଏହା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ 2 ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ନା, ପେପର୍ 2 ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଇୟର୍ ଯେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଥା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାକୁ ସେ ଗ୍ରାଫରେ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କିମ୍ବା ଏମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ତ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗ୍ରାଫ୍ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜି ଆଉ ଏସ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କଥା କହିଥିଲେ, ତ ସେ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ହି ଗେଭ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯେମିତି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହାଠାରେ ଥିବ ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଇଏ ଆସିଲେ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି କହିଥାଉ, ଗୋଟେ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଏ କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆବିଲିଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ହେରିଡ଼ିଟାରୀ, ଏଇଟା ହେରିଡ଼ିଟିରୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏବିଲିଟି, ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ୍ ବାଇ ଟ୍ରେନିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା, ସିଏ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମର ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି। କିନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇରେ ଭଲ କରିପାରୁଛି, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯିବ। ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ରହିଛି। କିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ରହିଛି। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି। ତ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି ଥାଏ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିକୁ କୁହାଯାଏ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଥା କହିଥିଲେ ସିଏ, ଏବଂ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆନାଲିସିସ୍ ବୋଲି। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇଆର୍କିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଟ୍ରାଇଆର୍କିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଗିଭିନ୍ ବାଇ ରବର୍ଟ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ। ତ ଟ୍ରାଇଆର୍କିକ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ହି ଗେଭ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍, ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆସିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଯାହାର ଅଦର ନେମ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଥାର୍ଡଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିଟିକାଲ ବା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ
तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस तो प्रथम तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कौन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बा कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस को कह जाए आपंकर प्रेजेंस ऑफ माइंड अर्थात आपण को हठात गोटे सिचुएशन आपण को आगे आसीगला जी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगे कि से ताको सॉल्यूशन बाहर करि पारला ता भीतर आमे कहि परबा प्रैक्टिकल बा कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस अच्छे बोली के ठीक अछि तो एटा को कह जाय थाए आपनकर स्ट्रीट स्मार्ट बोली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कह जाय थाए जी जे कौन सिचुएशन ता आगो को आसू जी आपनकर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगे कि तार सॉल्यूशन बाहर करि पारथाए एवं क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल माने आपण जानिथिबे क्रिएटिव माने सृजनात्मक तार अदर नेम दिया जाय एक्सपीरियंशियल एथि लागि जे एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव आधार रे जने कि कार्य करिछि तार से बहुत सारा अनुभव रही अनुभव आधार रे से किछि नुआ क्रिएटिव करि पारुछि नुआ किछि उद्भावन करि पारुछि तो ता भितर गोटे क्रिएटिव बा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस अच्छी बोली आम कहीपर और आउ गोटे से कहते आनालिटिकल बा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस आनालिटिकल कहले विश्लेषणात्मक विश्लेषण कहले कौन जमीक आम धरतु मैथमेटिकल गोटे प्रोब्लेम दि जाइए जड़े पूरा भल भाव में आनालिसिस करुच्ची पार्ट पार्ट भाग करके भल भाव में सल्व करुच्ची तो आनालिसिस माने भल भाव से आनालाइज करुच्ची तेणु आम कहीपर भितर आनालिटिकल बा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस रही तेणु पीसीए सर्टकट्रे आप पीसीए बोली मन रखिए ट्राइआर्किक थ्योरी किए देते आपंकर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग किए देते भी मन रखिए और नेक्स्ट आपंकर आसला देखो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देते आपंकर ईएल थॉर्नडाइक तो थॉर्नडाइक आपंकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी रही है जानी तो सी ही कहते मल्टी फैक्टर थ्योरी कथा जोटा कि आपंकर कौन से एग्जाम रे आसी ना तो आपंकर खाली मन रखता जे ईएल थॉर्नडाइक आपंकर तीन प्रकार इंटेलिजेंस कथा ये भी कहते एस सी ए करी मन रखिए एस फॉर आपंकर सोशल इंटेलिजेंस एवं सी फॉर कंक्रीट एवं ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट सोशल कहले जी एनवायरनमेंट सहित इजिली आडप्ट हो पारुथबो अर्थात इजिली से निजको समयोजन करि पारुथबो ता भीतर सोशल इंटेलिजेंस अछि बोले हम कहि परबा कंक्रीट कहले जे कोनोसी मूर्त वस्तु को देखिकिना से कोनोसी प्रकार तार आइडिया खर्च करुथबो एवं एब्स्ट्रैक्ट कहले अमूर्त संबंध चिंतन ठीक अछि आगे किसी वस्तु नथिबो एवं आइडिया तार विभिन्न प्रकार आइडिया अमूर्त चिंतन करि पारुथबो तो ये तीन प्रकार इंटेलिजेंस कथा कहते ये कहते जे दीज इंटेलिजेंस डिपेंड अपन चारोटी फैक्टर उपर डिपेंड करता है गोटे हूँ लेवल रेंज एरियाज स्पीड अर्थात लेवल कहले जड़े केते लेवल क्यों लेवल धरन तो आम गोटे पिलाटा को मैथमेटिकल आम दौर प्रोब्लेम करा तो सी केते लेवल पर्यंत से मैथमेटिक्स को करि पारुची इजी ना हार्ड ना मॉडरेट ना जमते आम आसी था डिफिकल्ट तो केते लेवल पर्यंत करि पारुची रेंज रेंज कहले कौन गोटे टाइम रे से केतेटा प्रोब्लेम सॉल्व करि पारुची एरियाज कहले से केते एरिया पर्यंत से प्रोब्लेम को सॉल्व करबा पाई तार थिंकिंग प्रोसेस जोटा रही तो केते एरिया पर्यंत से भाभी पारुची स्पीड कहले केते स्पीड से प्रोब्लेम टी से सॉल्व करि पारुची तो ये सब फैक्टर ऊपर डिपेंड करता है जोटा कि ईएल थॉर्नडाइक देते हैं नेक्स्ट आपंकर आसला देखो ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपंकर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोली कह जाए ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहीं देखो ये प्रथम तो किए देते आपंकर थॉर्नस्टोन ठीक अच्छे थॉर्नस्टोन देते तो ये आपंकर 7 प्रकार एबिलिटी कथा कही तेणु आपको कहला गोटे ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोली कह जाए तो प्रथम तो एस एस कहले स्पेशल एबिलिटी कहले जो मैंने कि खाली स्पेस को देखिकी विभिन्न प्रकार आइडिया लगे पारती जो मैंने कि आर्किटेक्ट हेले तो यही स्पेस एमती हो पार तो खाली जगह को देखिकी से आइडिया विभिन्न लगे पारती तो से भीतर स्पेशल एबिलिटी रही है और पी फॉर परसेप्चुअल एबिलिटी कहले जार माने जे देखो किए कौन से प्रोब्लेम अच्छी से जल्दी से प्रोब्लेम टी कौन ग्रास्प करिपारुची एवं तार सॉल्यूशन बाहर करिपारुची एवं जने पिला अच्छे से प्रोब्लेम को जल्दी से परसेप्ट कौन करिपारु नाही तो आम कहीपर जो पिलाटी जल्दी करिपारुची ता भितर परसेप्चुअल एबिलिटी रही तो तापर आसला देखो न्यूमेरिकल कहले आपनकर मैथमेटिक्स रिलेटेड जे भल नंबर क्षेत्र में जे भल मैथमेटिक्स क्षेत्र में नंबर क्षेत्र में भल कर भीतर न्यूमेरिकल एबिलिटी रही एवं भर्बाल एबिलिटी कहले भर्बाल एबिलिटी आपनकर जीव जे टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स अर्थात जड़े भल भाव में देखो आपंकर धरतु जमती कि पोएम आपंकर तो डायरेक्टली कौन से मीनिंग दे न था पोएम विभिन्न प्रकार वर्ड यूज होता है तो जी भल भाव में पोएम जो वर्ड दे
इंग्राजी भल भाव में तार मीनिंग को बुझीपे टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड तो ता भीतर आम भर्बाल एबिलिटी रही बोली आम कहीपर ठीक तार अपोजिट हूँ आपंकर कौन ना डब्ल्यू फॉर आपंकर वर्ड फ्लुएंसी कहले जो पिलाମାନଙ୍କର एबिलिटी रही से मैंने निजे विभिन्न प्रकार नुआ नुआ न्यू वर्ड से मैंने लगे पारुछंती जेकोसी लेखार हो कि जेकोसी कथार हो विभिन्न प्रकार नुआ नुआ वर्ड से मैंने लगे पारुछंती तो आम से कहीपर तार वर्ड फ्लुएंसी रही किंतु भर्बाल कौन जड़े भल भाव में वर्ड को बुझी पारुछि तो कम्प्रिहेंड कर पारुछि तो ता भीतर भर्बाल एबिलिटी रही जी भल भाव में निजे यूज कर पारुछि जो मैंने पोएट हेले तो से भितर ये वर्ड फ्लुएंसी थाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपंकर आसला मेमोरी अर्थ तो बुझीपे रिमेम्बर जो भल भाव में मन रखिपारती भर एबिलिटी रही रिजनिंग एबिलिटी कहले आपंकर थिंक लॉजिकली विभिन्न प्रकार रिजनिंग आप देखिथे जो मैंने भल भाव में सॉल्व करेंगे तो से भर आपंकर रिजनिंग एबिलिटी रही थिंक लॉजिकली जे मैंने थिंक करेंगे तो युड़क सब इंटर रिलेटेड ये जो रिजनिंग नंबर है ये इंटर रिलेटेड आपंकर भर्बाल एबिलिटी वर्ड फ्लुएंसी है ये सब इंटर रिलेटेड किंतु आपंकर थर्ड स्टोन कही एगुड़िक सब इंडिपेंडेंट ठीक अच्छे से आंकर थियोरी में क्रिटिसाइज करा नेक्स्ट आपंकर आसी देखो गोटे कौन आप 7 प्रकार कथा मन रखिदेवे नेक्स्ट आपंकर आसला 6th जे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस और 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ को किए देते ना आपंकर जयपाल गिलफोर्ड तो जयपाल गिलफोर्ड कही जयपाल गिलफोर्ड आपंकर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग कथा कहते तो सीटा आम अलरेडी डिस्कसन करदेचे तो आपंकर जयपाल गिलफोर्ड कही कौन ना ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत सारा फैक्टर कॉम्बिनेशन गठित और से फैक्टर गुड़ी से 3टी कैटेगोरी रखी गोटे हूँ कंटेंट गोटे हूँ ऑपरेशन गोटे हूँ प्रोडक्ट तो कंटेंट आपंकर 5टी कंटेंट अंडर 5टी फैक्टर थिला ऑपरेशन अंडर 6टी प्रोडक्ट अंडर 6टी तो टोटाल नंबर ऑफ टाइप्स केते हैला ना 5 × 6 × 6 है 180 तो प्रथम से जिते देते तो 120 फैक्टर थिला धीरे धीरे 150 और धीरे धीरे रिवाइज होगी 180 फैक्टर आसी आपको 3D मॉडल कहीं कहुच्छी जमी 3D मॉडल जमी आपंकर लेंथ ब्रेड्थ हाइट रही तो से ये ही धरत आपंकर लेंथ रे धरतु कंटेंट रो जो 5 रही तो से लेंथ रे सूचाई थे ब्रेड्थ रे आपंकर 6टी और आपंकर हाइट रे 6टी तो ये फैक्टर को से सूचाई थे यहाँ को जब एमती देखा जाए तो टोटाल नंबर ऑफ आपंकर 180 ही आसूची ठीक अच्छे तो ये इम्पोर्टेंट ना कि आपंकर 2016 आपंकर गिलफोर्ड ऊपर आपंकर क्वेश्चन आसी पेपर 1 पिलाମାନଙ୍କର तो जो मैंने प्रीवियस ईयर देखी ना से देखी तो प्रीवियस ईयर मुझे अलरेडी डिस्कसन करुँची तो आप देखिपारे तो देखो आपंकर टोटाल नंबर ऑफ टाइप्स देती आपंकर 180 तो ये आपंकर थिला कौन जयपाल गिलफोर्ड ये कथा आप मन रखिए और नेक्स्ट आपंकर आसला देखो क्रिस्टाल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस तो क्रिस्टाल एंड फ्लूइड कहले तरल क्रिस्टाल कहले कठिन तो ये आपंकर देते कि ना रेमंड बी कैटेल तो रेमंड बी कैटेल देते कहले कि इंटेलिजेंस 2 प्रकार अच्छे गोटे फ्लूइड गोटे हूँ क्रिस्टाल तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो मैंने कौन प्रोब्लेम बहुत सारा सॉल्यूशन भाभी पार्टी जो मानकर डाइवर्जेंट थिंकिंग रही तो ये मुझे चाहूँगी एगेन आउ डाइवर्जेंट कौन कन्वर्जेंट कौन बुझेबी ना कारण आपको अलरेडी से टॉपिक मुझे बुझे देती तो ये देखो जो मानकर डाइवर्जेंट थिंकिंग रही जो मैंने मल्टी थिंकिंग करपारती बहुत सारा चिंतन जहाँ भितर रही गोटे प्रोब्लेम को नहीं बहुत सारा सॉल्यूशन कथा भाभी पारती तो से भितर फ्लूइड इंटेलिजेंस आम कहीपर से फ्लूइड इंटेलिजेंस अंडर आसबे एवं से प्रकार ये जो इंटेलिजेंसटा आपंकर बाय बर्थ बा हेरेडिटारी यहाँ बाय बर्थ से थाए एवं आपंकर क्रिस्टाल इंटेलिजेंस यहाँ आपंकर कन्वर्जेंट थिंकिंग सहित आपंकर रिलेटेड जो मैंने गोटे प्रोब्लेम बोली गोटे सॉल्यूशन कथा भाभी पारती जमी मुझे कॉलेज मैथमेटिक्स एग्जांपल देती मैथमेटिक्स जड़े फर्मूला देखिए से आप्लाय कर भितर कन्वर्जेंट थिंकिंग रही तो से क्रिस्टाल इंटेलिजेंस अंडर आसो कि जी आपंकर फर्मूला क्रिएट करुँची न्यू फर्मूला क्रिएट करुँची तो सी आसो फ्लूइड इंटेलिजेंस भितर और देखो क्रिस्टाल इंटेलिजेंस को सिंगल थिंकिंग आम कहीपर यहाँ एनवायरमेंट रू यहाँ ही होता है और आपंकर जो फ्लूइड इंटेलिजेंस प्रायतः देखा जाए डिक्रीजेस आफ्टर 20 ईयर पर यहाँ धीरे धीरे कमी थाए और आपंकर क्रिस्टाल इंटेलिजेंस यहाँ आपंकर इनक्रीज होता है ठीक अच्छे
इनक्रिज होता है विभिन्न प्रकार एक्सपीरियंस है विभिन्न प्रकार आपणकर कौन विभिन्न प्रकार एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट है तो सोसाइटी कल्चर तो ये सबरू यहाँ आपणकर इनक्रिज होता है जो क्रिस्टल इंटेलिजेंस। तो ये थी आपणकर मोट उपर एतिकी थ्योरी खाली सर्टकट्रे बुझे कारण आपणकर एगुड़ा सब सीटेट्रे आसी था डीपली ओटेट्रे आसी न था ओटेट्रे जस्ट केबे केबे गोटे गोटे पड़े आसूची से लगी आपको होल इनफर्मेशन देदेली सर्टली। एवं देखो आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा आपंकर केमी आसी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी देखो जे जड़े व्यक्तिर मानसिक बयस और प्रकृत बयस सामान हेले से क्यों श्रेणीभुक्त हो। देखो मुझे ये गोटे कनसेप्ट आपंकर छाड़ी ये आपको कहवाक भूली जाइए आपंकर फिगर देखूँ देखो आपंकर ये फर्मूला आप देखुं जे IQ इज इक्वाल टू MA/CA इंटू 100 जितेबाला आपंकर MA आउ CA इक्वाल हो धरतु MA जनकर मेंटाल एज हूँ 7 क्रोनोलॉजिकल एज भी 7 तो 7 7 कटिगला तो आपंकर IQ केते बाहला 100 तो IQ जार 100 थी तो देखो ये IQ कर्व देखो IQ जार 100 तो से पिला आपंकर कौन हो नॉर्मल एवरेज भितर आसबे सेमती आपंकर मेंटाल एज जार अधिक थी तार प्रकृत बयस ठार मेंटाल एज मानसिक आयु अधिक तो से पिला IQ जोटा बाहर एभव 100 ही आसो एभव 100 ठीक अच्छे। एवं जो पिला मेंटाल एज ठारू तांकर प्रकृत बयस एक्चुअल एज अधिक हो जाए अर्थात जड़े पिला 10 वर्ष बयस किंतु तार मेंटाल एज मानसिक आयु जब देखा 7 तार से IQ तार 100 बिलो आसो ठीक अच्छे 100 बिलो आसो तो से बिलो एवरेज अंडर आसबे तो एवरेज तलू से आसबे तो ये तीनोटी कथा आप मन रखिए। और ये देखो आपंकर क्वेश्चन कौन आसी प्रीवियस ईयर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूँ बहुत इंपोर्टेंट जिते आपंकर एनालिसिस करेंगे जानीपारे कौ टॉपिक आपंकर क्वेश्चन आसूँ। तो देखो प्रथम तो कहला जड़े व्यक्तिर मानसिक बयस और प्रकृत बयस सामान हेले से क्यों श्रेणीभुक्त हो तो मानसिक आयु कहले आपंकर IQ फर्मूला कौन कहली ना मेंटाल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू आपंकर 100 तो कहला मेंटाल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सामान अच्छी ताले सामान हो गले तो कटिज IQ केते हम IQ इज इक्वाल्स टू 100 माने ये पिला आपंकर नॉर्मल बा साधारण बुद्धि संपन्न भितर आसबे ठीक अच्छे। तो राइट आंसर कौन हम साधारण बुद्धि संपन्न। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो जड़े 10 वर्ष शिक्षार्थी मानसिक बयस 10 वर्ष से क्यों श्रेणी शिक्षार्थी सेम क्वेश्चन आपंकर ओटेट्रे या ही रिपीट करुच्ची सेम क्वेश्चन किंतु लैंग्वेज चेंज कर दूची सेठी आपंकर खाली लिखिला मानसिक बयस प्रकृत बयस सामान ये किंतु लिखिदेला जे सामान बदल लिखिदेला जे गोटे पिलार 10 वर्ष शिक्षार्थी कहले तार ये क्रोनोलॉजिकल एज बा एक्चुअल एज बा प्रकृत बयस ये 10 और मानसिक बयस कहले मेंटाल एज हो 10 तेणु ये पिला कौन जीव ना पिला आपंकर सेम साधारण बुद्धि संपन्न भितर ही जीव। नेक्स्ट आपंकर देखो डायरेक्ट ये आपंकर प्रीवियस ईयर आसी डायरेक्ट फर्मूला आपंकर पचार क्योंकि बुद्धांक निर्णय कर सूत्र तो ये देखो आपंकर 4टी ऑप्शन रही 4टी ऑप्शन भितर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए जोटा कि मेंटाल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तापर आसला देखो टर्मैन मतरे मेधावी छात्र बुद्धांक केते तो टर्मैन कहते आपंकर यहाँ मन रखिए जे टर्मैन कहते आपंकर IQ लेवल 140 रु अधिक हेले से पिलाटी मेधावी छात्र भितर जीवे बोली टर्मैन कहते ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपंकर आसला देखो बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्वर प्रवर्तक किए देखिपे दुई उत्पादक कहले 2 फैक्टर जोटा आपंकर देते स्पीयर मैन देते 2 फैक्टर जोटा कि G फैक्टर गोटे आउटे हूँ आपंकर S फैक्टर तो G फैक्टर आपंकर कहले कौन जेनेल एबिलिटी एस फैक्टर कहले आपंकर स्पेसिफिक एबिलिटी जेनेल एबिलिटी कहते जनक समस्त भितर जेनेल एबिलिटी थाए कि स्पेसिफिक कहले कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में भल करुँच कि आपंकर साइंटिस्ट हो कि आपंकर सिंगर हो तो ये सब समस्त भितर गोटे निर्दिष्ट एबिलिटी रही तो ये जो बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्व एक आपंकर स्पीयर मैन ही कहते ठीक अच्छे राइट आंसर कौन हम स्पीयर मैन। और नेक्स्ट आसला देखो जड़े व्यक्तिर बुद्धिंक 130 हेले निम्नोक्त उक्त मध्य क्यों ठीक तो जड़े व्यक्तिर बुद्धिंक 130 तो बुद्धिंक कहले आपंकर कौन ना IQ तो आपंकर IQ फर्मूला कौन ना आपंकर IQ इज इक्वल टू मेंटाल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 तो ये किसी देलानी आपंकर देछि कौन बुद्धिंक हूँ 130 तेणु मुझे आपको बुझे जितेबाला IQ बा बुद्धिंक आपंकर 130 हो
130 हो अर्थात एभव 100 हो तो सेतेबेले आपणकर कौन होता है से इक्वेशन से कर्व पाखे मैं आपको बुझेली से आपणकर कौन हो ना जो मेंटल एजटा क्रोनोलोजिकल एज ठारू बड़ हेब ठीक अच्छे ताले ये जहाँ इक्वेशन देती इक्वेशन आपणकर कौन हम ना मेंटल एज ग्रेटर दैन आपणकर क्रोनोलोजिकल एज तेणु ये राइट आंसर कौन हो आपणकर ऑप्शन नंबर ए जदि आपणकर आईक्यू देता 100 जदि देता बुद्धिआंक ताल आपंकर होता मानसिक बयस इक्वाल्स टू प्रकृत बयस एवं जदि देता आपंकर ये बुद्धिआंक 100 रु कम जदि देता ताले सेठी आपंकर प्रकृत बयस मानसिक बयस ठारू बड़ होता तो एतिक डिफरेन्स मन रखिए एवं नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन आसी प्रिवियस इयर जे जड़े छात्र प्रकृत बयस 7 वर्ष मानसिक बयस 7 वर्ष छात्रटी क्यों श्रेणी अंतर्भुक्त हो ना सेम ये आपंकर मेंटल एज और क्रोनोलोजिकल एज सामान देचे तेणु ये पिलाटी साधारण बुद्धि संपन्न भितर नॉर्मल एवरेज भितर ही जीव एवं नेक्स्ट आपंकर आसला देखो जे जड़े मंथरगामी शिक्षार्थी बुद्धिआंक साधारणतः केते देखो आपड़ जदि ये टेबुल देखुं ये आपको ऑप्शन प्रथम तो देखो ऑप्शन देती 60 रु कम ना 60 रु 80 मध्य ना 90 रु 110 मध्य ना 110 रु अधिक ये कहला मंथरगामी देखो ये आप देखिए टेबुलटी तो ये टेबुल आपको टी ओटेट्रे जहाँ आसूसी टी आप मार्क करेंगे तो ये देखो आपंकर टेबुल भितर सेमती किसी 60 रु 80 आपंकर ना कि आपंकर ये 70 रु 80 भितर आपंकर डल बा बॉर्डर लाइन आपंकर अच्छी ठीक अच्छे जोटा कि मंथरगामी पिलाମାନଙ୍କର तो टेबुल 70 रु 80 भितर अच्छी किंतु ये आपंकर 70 रु देनी ये आपंकर केते केते देछि ना आपंकर ये 60 रु 80 मध्य देछि तो सेटा को मार्क करके ये आप राइट आंसर करेंगे 60 रु 80 सब बेले ओटेट्रे आपंकर साधारण बा नॉर्मल बा एवरेज चाइल्ड पिलाମାନଙ୍କର बुद्धिआंक पचार 90 रु 110 भितर एवं मंथरगामी 60 रु 80 भितर यहाँ मन रखिए एवं नेक्स्ट आपंकर आसी देखो यहाँ आपंकर गोटे डेफिनेसन गोटे इयर आसी प्रायतः आउ कौन इयर आसी ना तेणु से क्वेश्चन मुझे आड कर दीजिए जहाँ आपने मन रखु जे मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए यार प्रवक्ता किए थे स्पीयरमैन जीन पियाजे गाल्टन ना टॉलमैन तो राइट आंसर कौन हम एक आपंकर स्पीयरमैन कहते तो ये आपंकर ये क्लास टी आई थिंक यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपने बुझीपारे ये जहाँ थ्योरी देछि एवं क्वेश्चन लास्ट को जहाँ रखा जाए आपने देखिपे आई थिंक आपने बुझीपारे ठीक अच्छे आ जहाँ डाउट थी आप टेलीग्राम में पचारि पारे तो आज थैंक यू।